So children, we are doing a revision of the chapter second, method of psychological inquiry. In this chapter, we had done the revision of the so many topics, like we studied about the rules of psychological inquiry, steps in conducting scientific research. Then we had also discussed about the types of data. Then we had discussed about the methods, what are the different methods for the psychological inquiry, where we discuss about the observation method. Observation method I had already discussed with you all in the video and in the previous video, and also I discussed about the survey method. Then I discuss about the correlation, not the correlation method, two methods we had discussed, observation method and the survey method. So today we will study about the experimental method. Children, try to understand the experiment method properly. You had already studied this topic, I know very well, but right now you are doing the revision. So study the experimental method in a very proper manner. Experimental method. So I'm teaching you the one of the method of psychological inquiry, which is the experiment method. Why I am saying it is important? Because it is very large topic also, and it is really an important method. क्योंकि experimental method आपने नहीं जाना तो आपने psychology का एक part नहीं जाना. तो psychology क्या है? Like it is all about the science. It is all about an experiment. So first discuss about our topic of today is experimental method. What is experimental method? नाम से पता चल रहा है कि something experiment we do it in it. Some kind of experiment we do. So some kind of experiment. So what is experiment? Experiment है क्या? Experiment is basically there is two variable, दो variable होते हैं and effect of one variable can be seen on other. That is experiment. एक्सपेरिमेंट क्या है? दो वेरिएबल होते हैं, दो स्टिमुलस होते हैं और एक का इफेक्ट दूसरे पे हम देखते हैं. दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड. Okay, so experiment, there is a definition also of the experimental method, that experimental method study the cause and effect relationship between two variables. So it talks about the cause and effect. Cause and effect relationship between the two variables. Variable one, there are three types of variable also. Before going to the types of variable, you should understand what is variable. Variable क्या है? Variable is an event or condition which varies. Okay, वेरिएबल मतलब कि जो वैरी कर रहा है, जो चेंज हो रहा है. मीन्स जो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वेरिएबल नहीं होता. स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल होते हैं. लाइक पेन इज नॉट अ वेरिएबल, बट पेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? उसकी साइज, उसका शेप, उसका कलर, वो वेरिएबल है. So always remember children that stimulus on object is not a variable, their characteristic is a variable. So this is variable and there are three types of variable, IV, DV. There are three types of variable, IV, DV and RV. RV is also known as EV. EV means extraneous variable. RV का full form होता है relevant variable. Relevant variable वो variable is also known as extraneous variable. ये वो variable होते हैं जो आपके experiment को affect करते हैं. Extraneous यानी जो बाहर से आए, जो आपके experiment का part नहीं है, जो बाहर से आए. So that is relevant variable or the extraneous variable. IV क्या है? Independent variable and DV is dependent variable.
So there are three types of variable: IV, DV, RV, or it is also known as trivial. Now, what is IV? I hope children you understood what is experiment method. Experiment method see the what is the cause and effect relationship between two variables. दोनों वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है? एक कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है. आईवी जो होता है वो कॉज होता है. ये सारी चीजें यू ऑलरेडी हैड स्टडी. इट जस्ट अ रिवीजन. आईवी जो होता है वो कॉज होता है और डीवी जो होता है वो इफेक्ट होता है. आईवी का इफेक्ट हम लोग डीवी पे देखते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी हाइपोथेसिस लीजिए. टेक एनी हाइपोथेसिस that enriching environment, yeah, you can take hypothesis that healthy parent child relationship increases the performance of the child. Again I am repeating children, what is the problem? Healthy parent child relationship increases the performance of the children. Here IV is healthy parent child relationship. बच्चे का अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी है तो वो उसकी वजह से बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज अच्छा होता है. तो आईवी क्या है आपका? बच्चे का हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और इसका इफेक्ट देख रहे हैं आप किस पे? परफॉर्मेंस पे, बच्चे के परफॉर्मेंस पे. तो बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है ये टोटली डिपेंड करेगा कि बच्चे के का अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप कैसा है. हमने आईवी क्या लिया है? एक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया है कि बच्चे का रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स से. व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड विद हिज और हर पेरेंट, वेदर इट इज हेल्दी मीन्स गुड और वेदर इट इज अनहेल्दी. इसका एफर्ट हम लोग देख रहे हैं किससे? चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, like how he is performing in the school. So one will become the IV and one will become the DV. In this way we do the experiment. इसी तरह हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी चीज को लेके. आपने पढ़ा है कि स्टेप्स क्या है रिसर्च के? पहले हम लोग प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और फिर उस कंक्लूजन को फिर से रिवाइज करते हैं. तो ये हमारे 4 स्टेप होते हैं. तो सबसे बड़ा काम होता है और पहला काम ये होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना. ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपको उसकी हाइपोथेसिस बनाते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. जैसे मैंने अभी बताया कि अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अच्छी होगी, एक बच्चे का उनके माँ बाप से बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा. लाइक बहुत पेरेंट की पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है? लाइक पेरेंट्स जो है बहुत ही ओवर परमिसिव है या अंडर परमिसिव है, वो भी होता है. लाइक हर एक बात के लिए परमिशन दे देते हैं या फिर नहीं देते हैं हर एक चीज के लिए. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल ऑफ द पेरेंट? It also very much play a very important role in the life of the child. कि पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है वो बहुत हद तक डिपेंड अफेक्ट करता है चाइल्ड. अगर पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अच्छी होती है तो बच्चा भी बहुत अच्छा रहता है, आगे प्रोग्रेस करता है, सब चीजें सही रहती हैं. तो पेरेंटिंग स्टाइल मैटर करती है. उसी तरह तो हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में? पहले प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज कर लिया. एक बार प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, फिर क्या करते हैं हम लोग? हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा. इट जस्ट लाइक अ प्रेडिक्शन. जैसे मैंने अभी एक प्रेडिक्शन किया कि अगर माँ बाप का रिलेशनशिप बच्चे से बहुत अच्छा है तो बच्चा आगे प्रोग्रेस करेगा. I make a hypothesis that healthy parent-child relationship increases the performance of the child. तो यहाँ पे जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम लोग हाइपोथेसिस बनाने के लिए या कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए वेरिएबल लेते हैं. किस पे करेंगे? कुछ चाहिए, वी रिक्वायर समथिंग, तो वी टेक अ वेरिएबल. एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें एक वेरिएबल का इफेक्ट हम लोग दूसरे वेरिएबल पे देखते हैं. तो दैट व्हाट वी डू यूजुअली. तो वन इज आईवी, वन इज डीवी. आईवी का इफेक्ट हम लोग डीवी पे देखते हैं कि क्या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अच्छा होने से क्या बच्चे का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा है और उसका क्या प्रभाव, उसका क्या इफेक्ट बच्चे के परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है. तो दैट इज द आईवी और डीवी. अब अगर हमें सिर्फ वन वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे पे देखना है तो इनके अलावा भी हमारी इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारे अदर वेरिएबल भी होते हैं. बहुत सारे वेरिएबल. तो हमारे खुद के भी कुछ
जैसे पर्सन भी है, थक गया, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आरवी जो आपको इस मेथड में पढ़ना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरवी? तो क्या हो रहा है कि उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हमें क्या करना है, हम सिर्फ इसका इफेक्ट इस पे देख रहे हैं। वी हैव टू सी द आईवी इफेक्ट ओनली ऑन द डीवी। सो अदर इफेक्ट्स हमें नहीं चाहिए डीवी पे। ओके, द चिल्ड्रन कीप इन माइंड कि एक्सपेरिमेंट मेथड जब भी आप यूज करते हो, आपको हमेशा आईवी का इफेक्ट डीवी पे देखना है, आपको आरवी को कंट्रोल करके रखना है। आरवी को आपको लाइक किसी भी तरह से कंट्रोल करना है, और वो एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्वेशन की लैकिंग है कि ऑब्जर्वेशन में यू आर अनएबल टू कंट्रोल द आरवी, क्योंकि जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू डू द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यू आर अनएबल टू कंट्रोल द आरवी, बट एक्सपेरिमेंट में आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ आईवी का इफेक्ट डीवी पे चाहिए। ऐसा ना हो पता चला कि और भी अदर फैक्टर्स का इफेक्ट हो रहा। तो इसी को कहते हैं कंट्रोल लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। ओके, कंट्रोल वे में आप कर रहे हैं। मैंने आईवी क्या लिया, मैंने ये लिया कि हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो हमें यही इसी का ही इफेक्ट सिर्फ बच्चे के परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए, ना कि अदर फैक्टर्स आ जाए, लाइक बच्चे का इंटरेस्ट भी आ जाएगा। हो सकता है कि बच्चे का पढ़ाई में, लाइक द चाइल्ड इज नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। एक ये भी फैक्टर हो सकता है, व्हाई इट इज नॉट सो। देन और क्या फैक्टर हो सकता है, द चाइल्ड हेल्थ ऑल्सो, सम हो सकता है मे बी द चाइल्ड इज फेसिंग सम हेल्थ इशू, दैट्स व्हाई ही इज नॉट परफॉर्मिंग। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स which affect the child performance. चाइल्ड के परफॉर्मेंस को लो करने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो ये हमें उन चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है जब हम एक्सपेरिमेंट मेथड कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, हमें सिर्फ आईवी या फिर डीवी पे चाहिए और किसी का नहीं। तो कैसे उन्हें कंट्रोल करेंगे, उसके लिए कुछ टेक्निक्स भी हैं। और पहले टेक्निक्स जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरवी। So before moving toward the types of RV, okay, so let us discuss about the types of RV. पहले types of RV ही discuss करें। Let's discuss about the types of RV. Okay, types of RV. As you all know, there are different types of RV. What are the different types? First, organismic variable. This is one types of RV, organismic variable. organismic variable वर्ड बना है organism से। organism का मतलब होता है पर्सन, खुद, इंडिविजुअल। तो उसकी खुद के भी कुछ वेरिएबल होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे पर्सन के खुद के लाइक वेरिएबल, लाइक he easily get पर्सन का खुद का वेरिएबल, लाइक उसका जेंडर भी हो सकता है, और एनी लाइक उसके इंटरेस्ट हो गए। ओके, उसका इंटरेस्ट नहीं है। ऑल दीज थिंग, वॉट एवर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनिज्म इज कम अंडर द ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल। नेक्स्ट वन इज द सिचुएशनल वेरिएबल। सिचुएशनल वेरिएबल मींस जो जिस सिचुएशन में वो है, लाइक आसपास की सराउंडिंग, द नेचुरल सराउंडिंग, दैट कम अंडर द सिचुएशनल वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल वेरिएबल। सीक्वेंशियल वेरिएबल भी होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ आरवी: ऑर्गेनिस्मिक, situational, sequential. Okay, so these are some of the types of RV which are affecting the experiment from outside. Then we have to discuss what are the techniques to control these variables. We are discussing about the RV, relevant variable. Relevant variable are those variable which came from the outside. They are external variable. They came from the outside. And what they do, they affect your experiment. उनका काम ये होता है कि वो आपके एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो हमेशा जो एक्सपेरिमेंटर होता है, रिलेवेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है, ताकि वो उनकी एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट ना करें।
क्योंकि बेसिकली हमें IV का इफेक्ट DV पे देखना है। वी हैव टू सी द IV इफेक्ट ऑन द DV। तो IV का ही इफेक्ट DV पे आना चाहिए, उसकी वजह से वो रिलेवेंट वेरिएबल को कंट्रोल करता है कि ऐसा ना हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि रिलेवेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो है DV पे आए, सो वी डू नॉट गेट द ट्रू रिजल्ट, फिर हमें क्या होगा, ट्रू रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दिस इज अबाउट द RV। RV also are of three kinds. Three kinds के RV होते हैं: organismic variable, situational and sequential. Organismic variable वो वेरिएबल होते हैं जिसमें पर्सन की खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे मैंने जो वेरिएबल अभी लिया, मैंने लिया हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। अगर माँ बाप के साथ बच्चे का अच्छा रिलेशनशिप होगा तो बच्चा आगे बहुत बढ़ेगा, सक्सेस करेगा, परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज होगी उसके करिकुलम में, उसके कोर करिकुलम में। बट अगर वही ये हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल हो, यानी उसका खुद का कुछ वेरिएबल हो, लाइक उसके खुद के कुछ वो लाइक जैसे कि वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है उसके में, और एप्टीट्यूड नहीं है। एप्टीट्यूड मतलब होता है पोटेंशियल टू एक्वायर एनी काइंड ऑफ स्किल। एप्टीट्यूड मतलब होता है जब हमारे पास मीन्स हमारे में कितना पोटेंशियल है किसी भी स्किल को एक्वायर करने का, दैट इज नोन एज एप्टीट्यूड। तो कई कई पर्सन में क्या होता है, कई कई पर्सन कुछ चीजों को परस्यू तो कर लेते हैं पर उनके में वो एप्टीट्यूड नहीं रहता, उतनी पोटेंशियलिटी नहीं रहती उस स्किल को एक्वायर करने का। मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मुझे डांस नहीं आता और मैं डांस क्लासेस ज्वाइन कर लूँ और मैं जिद पकड़ लूँ कि नहीं मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है, जबकि मेरे में वो पोटेंशियलिटी नहीं है। तो हर एक किसी की एप्टीट्यूड होती है, हर एक किसी में हर चीज। So we are discussing this the types of RV. So there are three types of RV: organismic, situational and sequential. Organismic वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो पर्सन की खुद की फैक्टर्स होते हैं, लाइक पर्सन की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका खुद का इंटरेस्ट, उसका खुद का एप्टीट्यूड। सिचुएशनल वेरिएबल वो वेरिएबल होंगे विच इज क्रिएटेड बाय द सिचुएशन, लाइक द इन्वायरमेंटल फैक्टर, like the environmental factors and the physiological condition, physical condition, that come under the situational factor. Sequential variable include the like इसमें आएंगे like fatigue, all these things, like sequence में कोई भी work करने की वजह से fatigue भी हो सकता है, तो that all come under the sequential variable. Okay, so now we will discuss what are the techniques to control the RV. Techniques क्या हैं RV को कंट्रोल करने की? So let us discuss what are the techniques to control the RV. First, elimination. First technique is known as the technique of elimination. Technique of elimination means you eliminate that variable from your experiment. That is the technique of elimination. Means आप उस variable को ही eliminate कर दीजिए. That is the best option. Second is the matching. Matching means what we do in the matching variable, we take the two variables. Second variable is the matching. In matching, we take like those variables which match with each other. Okay, we use the matching technique. Third one is the balancing, and next fourth one is the counterbalancing. Fourth one is the counterbalancing. Next is the randomization. Next technique is the randomization. So these are some of the techniques of
are relevant variable through which you are able to control the RV. You can use the technique of elimination, you can use the technique of matching, you can use the technique of balancing, you can use the technique of counterbalancing and randomization. In randomization, each and every individual has an equal chance to participate. That is a randomization. हर एक इंडिविजुअल के पास चांस होता है पार्टिसिपेट करने का. Okay, so these are some of the techniques through which you are able to control the RV. We discuss what are the types of RV. Okay, sequential variable वो variable जैसे कि कोई भी काम आप continuously कर रहे हो तो like fatigue हो रहा है और tiredness हो रही है, that come under the sequential variable. Situational आपका environmental like noise, temperature all come under the situational variable. Okay, organismic variable means person की own characteristics that come under the organismic variable. Understood? And these are the techniques. Elimination कर सकते हैं आप, randomization कर सकते हैं, काउंटर बैलेंसिंग आपका सिक्वेंशियल के लिए होता है, जैसे कि हम लोग ऑर्डर चेंज कर लेना. अगर हम लोग किसी चीज़ को ए बी करके करा रहे हैं तो हम उसका अगर लैक ऑफ इंटरेस्ट ना हो, फटीग ना हो, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं लाइक ए बी ना करके हम लोग ए बी फिर बी ए ऐसे करें, मीन्स चेंज इन द सिक्वेंस. सो दैट इज कम अंडर इन द काउंटर बैलेंसिंग. सो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका लाइक वो आरवी जो है इफेक्ट नहीं करेगा आपके डीवी को. बैलेंसिंग कर सकते हैं. So these are some of the techniques through which you are able to control the RV so that your RV is not going to affect your DV. Okay. When we talk about the experimental method, the two groups were made in experimental method: experimental group and control group. Experimental group versus control group. एक्सपेरिमेंटल वर्सेस कंट्रोल ग्रुप. दो तरह के ग्रुप बनाते हैं. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें हम लोग लाइक आईवी और डीवी लेते हैं बट किसी को भी कंट्रोल नहीं करते हैं, लाइक कोई रिलेवेंट वेरिएबल कंट्रोल नहीं हो रहा है. बट कंट्रोल ग्रुप इज दैट ग्रुप वेयर वी आर कंट्रोलिंग द रिलेवेंट वेरिएबल. हम लोग रिलेवेंट वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. तो आफ्टर मेकिंग सच काइंड ऑफ ग्रुप हम लोग बेसिकली ये दो ग्रुप इसलिए बनाते हैं, दे आर मेड फॉर द कंपैरिजन करने के लिए ग्रुप बनते हैं. ओके, दे आर मेड ओनली फॉर मेकिंग अ कंपैरिजन, ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं. लाइक एक ग्रुप में हम लोग सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं और एक ग्रुप पे नहीं कर रहे हैं, तो वी सी दैट व्हाट इज द इफेक्ट in the experimental group and what is the effect in the control group. Okay, so this is all about the experimental method. We studied about the variable. One more thing which is related to the experimental method is the types of experiment. Experiment के भी two types पाए गए हैं. One is field experiment and second is quasi. There are two types of experiment: field experiment and quasi experiment. Quasi means field experiment is those experiment which you do in the field, which you do in the natural setting. Like कुछ experiment ऐसे होते हैं जो आप natural setting में करते हो. Like some experiment you have to go in the particular field. It doesn't will happen in the psychological laboratory. आप उन एक्सपेरिमेंट्स को लैब में नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा और फील्ड में जाके वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. तो दैट इज अ फील्ड एक्सपेरिमेंट. लाइक अदर इन केस इफ यू वांट टू सी दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक. So there are two types of experiment also: field experiment and quasi experiment. Field experiment are those experiments which are conducted in a natural setting in a field. Quasi means like I am giving you the example of the field experiment. Like for example, if you have to study that what is the effect of the earthquake on the mental health of the person. So sometimes the researcher go to that particular site where the earthquake had happened, and after going on that particular place, the researchers study about it. So that is
द फील्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे आपको जो जानना है कि अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट मेंटल स्टेटस पे पड़ा है पर्सन के, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ के लोगों पे आप एक्सपेरिमेंट करिए या उनको ऑब्जर्वेशन करिए या आप उनका इंटरव्यू करिए, तो यू आर एबल टू नो। तो दैट यू आर डूइंग अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, यू आर गोइंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। क्वासी एक्सपेरिमेंट व्हेन यू डू द सेम थिंग इन आर्टिफिशियल सेटिंग, आप उस तरह का कोई आर्टिफिशियल सेटिंग आप बना लेते हो और सिमिलर थिंग्स यू आर डूइंग, सो यू आर डूइंग द क्वासी एक्सपेरिमेंट। सो दिस देयर आर टू थिंग्स, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, field experiment and quasi experiment. So children, this is all about the experiment method, which is a very important method in psychology, and it is very good, and I can say it is a very reliable and standardized method of inquiry in psychology. Here we had studied about what is experiment, then variable, then what is there? Variable, experiment, then there are two types of variable, three types of variable. What are the three types of variable? Then we discuss what are the techniques to control the RV, what are the types of RV. Then we discuss there are two types of group, experimental group and control group. Then we discussed there are two types of experiment, field experiment and quasi experiment. So this is all about the experimental method. I hope you understood it. So thank you for listening and watching to me. Thank you.